Welcome student. In this video we'll continue with the PYQs of theory of equation. In the last video we have finished 10 PYQs which includes the JEE mains as well as the JEE advanced question, and the criteria and the area which we are covering here is the sum of the roots and the product of the roots. That categories of questions we are covering. So student who is just looking at the first video, this one, so go back to the last two videos where we have bifurcated the PYQs of JEE mains and advanced of theory of equation chapter in such a way that we are covering the similar kind of question together. So here next set of PYQs, sum of the roots, based on sum of the roots. So 11th number question, alpha beta are the roots of the equation. The equation is this, that is px square plus qx plus r is equal to 0. Obviously p not equal to 0, pqr are in ap, and 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to 4. Then the value of this mod of alpha minus beta. First and foremost, in 10th standard you may be knowing that what is mod of alpha minus beta. Believe me, all these questions, some of the zeros are of the level 9th and 10th standard. आज हम जो भी क्वेश्चन लेंगे ये लिटरली 10th के बियॉन्ड के नहीं है, 10th के है, मतलब इससे एज्यूम कर सकते हैं कि जेईई मेंस का लेवल क्या है. ठीक है. इसी तरह से एक और टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो हम 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस देखते हैं सीबीएसई में, स्टेट में, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुके हैं. पीवाईक्यूज ट्रिग्नोमेट्री के कभी लेंगे हम तो उसमें चेक कर लेना, या ऐसे भी अगर किसी के पास बुक्स होगी तो चेक कर लेना. दैट्स व्हाई माय इंसिस्ट, माय फोर्स इज ऑलवेज दैट just remove the phobia of mains. It is really a very easy paper. It's a very easy paper. Okay, शुरू करते हैं. Sum of the zeros, alpha plus beta, we know this, minus q by p. Product of the zeros, alpha beta, will be r by p. I will solve this relation, alpha cross it, alpha plus beta upon alpha beta, alpha plus beta upon alpha beta, equal to 4. So I can just put the values from here. So it is minus q by p upon r by p. So reverse will be p by r, because alpha beta when goes up, so it will be reciprocal, is equal to 4. So I got a relation, minus pp get cancelled, minus q is equal to 4r. That is something the relation I got. Fine, that is something the relation I got. Question asked is mod of alpha minus beta. One more point which I can pull out from here is PQRR in AP. So AP जो 10th के बच्चे उनको मालूम होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. PQRR in AP मतलब एक और रिलेशन मिल गया, that is 2Q is equal to P plus R. ठीक है ना, 2Q is equal to P plus R, एक और रिलेशन मिल गया, PQRR in AP. फाइन. नाउ देखो ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा 10th में जहां भी कोचिंग होंगी उन्होंने पढ़ाया होगा कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट आंसर है डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर अपॉन ए. ठीक है. कैसे आता है मैं खुद ही बता देता हूँ. ये सब आर्बिट्रेरी बेस है. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ठीक है. ये हमको आइडेंटिटी मालूम है, 9th स्टैंडर्ड में हुई थी. उसमें से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो हमको मालूम है क्या है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस क्यू बाई पी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा है आर बाई पी. यहाँ पी स्क्वायर आने वाला है, यहाँ पी आने वाला है, तो ऊपर नीचे पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पी स्क्वायर हो गया. सो इट बिकम्स क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन पी स्क्वायर. दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बट आई वांट अल्फा माइनस बीटा अंडर मॉड. सो जब इसका अंडर रूट लेंगे सो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन पी. देखो यही चीज मैंने बोला, इतना करने की जरूरत नहीं है रूल. ठीक है. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो रहती है, अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ b, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट. चेक आउट, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना. चेक आउट, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे क्या होने वाला है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज p. हम जनरल में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. फाइन. सो इट्स वेरी सिंपल. सो दिस स्टेप यू कैन जस्ट रिमूव इफ यू नो दिस थिंग. ठीक है. छोटी छोटी चीजें हैं. मैं बोल रहा हूँ कि आज के वीडियो में मैं 10th के बियॉन्ड नहीं जाने वाला और जे के क्वेश्चन है सब. ठीक है. चलो, सो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है.
वैल्यूज सब जो है इंडिविजुअली हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका आंसर किसी और के टर्म में नहीं आएगा। तो बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि किसी एक के टर्म में लिख लेते हैं, किसी एक के टर्म में लिख लेते हैं। सपोज क्यू के टर्म में लिख लेते हैं, इस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो निकालना है उसको वर्कआउट कर लेते हैं। इट इज अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन p। ठीक है, दैट इज समथिंग द वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट। सो क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, सिंपल देखते हैं। क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको किसी एक में कन्वर्ट करना है। अगर मैं कोशिश करूँ पी आर में कन्वर्ट करने की तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो क्यू स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू 16r स्क्वायर माइनस 4r, मैंने r लिख दिया, p बचा है। तो p को हम क्या लिख सकते हैं ये हम चेक कर सकते हैं। देखो ये सब हमारे ऊपर है, हम कैसे वर्कआउट करते हैं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हम कुछ और कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर q है, यहाँ 2q है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से हमको 2q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 2q की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 8r। फाइन, सो नाउ आई कैन इक्वेट दिस टू 2q, सो माइनस 8r इज इक्वल टू p प्लस r, so that gives me p is equal to minus 9r. Fine, so I can replace p with minus 9r. That's it, very simple. And upon p is again minus 9r. या आपके हाथ में p में करना है, q में करना है, r में करना है, मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ सिर्फ। Yeah, so it's coming 36r square plus 16r square is 52r square, so that is root 52r upon minus 9r. r get cancelled. So my answer is माइनस आ रहा है, लेकिन देखो मैंने बताया था कि वो जो फॉर्मूला है मॉड में है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। इसको हम अगर ले लेते हैं पॉजिटिव तो दैट माइनस साइन हैज गॉन। रूट 52 अपॉन 9, रूट 52 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 13, 1 सेकेंड, 2 रूट 13 अपॉन 9। फाइन, 2 रूट 13 अपॉन 9, ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल 10th की स्टेप्स है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू लिटिल बिट स्पीड अप, ठीक है ना। समझाने के लिए मुझे टाइम लगा, अदरवाइज फॉर मी इट्स अ 30 सेकंड क्वेश्चन, इट्स अ 30 सेकंड जेईई मेंस 2014 क्वेश्चन। ठीक है, मैं काफ़ी समय से बोलते आ रहा हूँ कि 19 के बाद जेईई मेंस ईजी हो गया। यहाँ पे तो हमको 14 का भी क्वेश्चन ईजी दिख रहा है, सो 2014 का क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी हमको यहाँ पे दिख रहा है। फाइन, लेट अस जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये तो एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये तो मुझे सेकंड स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिल्कुल सेकंड स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे 2 सेकंड का क्वेश्चन लगता है। ये क्यों ही आया जेईई में मुझे नहीं मालूम, क्यों आया मुझे लिटरली नहीं मालूम। इसका आंसर है 25/81। क्या बोल रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो भी रूट्स है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई में आके इन्होंने जेईई का लेवल गिरा दिया सीरियसली। 5 सितंबर टीचर्स डे गिफ्ट होगा शायद, पता नहीं, पिछले साल का हो सकता है टीचर्स डे गिफ्ट होगा। देखो ये मॉड है, ठीक है, हमको मालूम है प्रोडक्ट अगर सपोज मॉड नहीं रहता तो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा क्या रहता है, c/a, मतलब 5/9, 5/9 प्रोडक्ट रहेगा। देखो सभी आंसर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ नहीं है, ऑप्शंस में सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी नहीं है। अब ये मैं मॉड हटाता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। तो दूसरा भी आंसर का जो जीरोस रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो जीरोस हमारे वापस से 5/9 ही, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या रहेगा, 5/9 ही रहेगा। और टोटल हमको यहाँ पे 4 जीरोस मिल गए। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। टोटल हमारे को यहाँ पे 4 जीरोस मिल गए। तो पहले वाले का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा का 5/9, और आगे वाले हम गामा डेल्टा ले लेते हैं उसका भी 5/9। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस 4, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 4 रूट्स मिलेंगे, चारों का प्रोडक्ट। देखो मैंने पेपर पेंसिल का भी यूज नहीं किया, 5/9 इंटू 5/9, आंसर इज वेरी सिंपल 25/18। एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, नहीं तो ये तो सीरियसली 5 सेकंड का क्वेश्चन था, इट्स अ 5 सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे क्या, जब सॉल्व करने जाएंगे तो मैं बता देता हूँ क्विकली, मैं पूरे सॉल्व नहीं करूँगा। 9x², पहले मैं x पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ, सो -18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा रूट से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी 5/9। ठीक है, दूसरा केस क्या रहेगा, 9x² तो एज इट इज रहेगा,
-18 और ये मॉड x को हम निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि मॉड के दो आंसर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो निगेटिव ये निगेटिव, सो प्लस h(x + y = 0। वैसे भी अगर वो दोनों रूट हमने गामा और डेल्टा ले लिया तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5/9, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ये चेंज भी होता है तो कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज ऑलवेज c/a। तो 5/9 का प्रोडक्ट हो गया 25/81, सिंपल 25/81 over। So as I told you, that's very simple question. I mean, they have really reduced the level of means, and maybe शायद वो पॉजिटिव वे में ही होगा, क्योंकि जो बच्चे डर जाते हैं या डराया जाता है जो भी चीज़ बोलो मेंस को लेकर, वो सब धुल जाएगा ये क्वेश्चनों को देखकर, आई थिंक सो। ठीक है, 13 क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, जी मेंस देखो 5 सितंबर फर्स्ट, 5 सितंबर सेकंड, थोड़ा इससे ठीक है लेकिन है वही, मतलब क्या बोलेंगे इसको, टीचर्स डे गिफ्ट। हाँ, सो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3/7। सबसे पहले तो ये निकाल ही लेते हैं हम हमेशा। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस? द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आई एम गोइंग टू गेट इज -2/7, -2/7। Fine, so I got this two value. Then question asked is find the value of this. Find the value of this. Fine. So the objective is to do it very quickly, do the cross multiplication, because you don't have the value of this. One approach. Another approach is something, we know that alpha is the zero of this, so replace x with alpha, so I can get 7 alpha square is equal to 3 alpha plus 2. We have done such kind of question earlier. So that gives alpha square is equal to 3 alpha plus 2 upon 7. Put that value of alpha square here. ठीक है, try to understand the concept which I am trying to explain you guys. Fine, this is very important. By doing this, what you can do, you can reduce alpha square and beta square, and then it will be the linear case alpha and beta, which can be solved by alpha plus beta and alpha beta, those two values which we know. That is one approach that is not available in many of the videos and all that, but the normal approach which is available is of 10th standard. In that also little quicker, be little quicker. Fine, so I am doing the 10th standard method, and the other one which I told is also 10th standard, just the common sense which you need to use. So when I am doing the cross, I am doing the two step together, alpha 1 plus beta 1, so I got alpha plus beta over here, then minus alpha beta square plus minus alpha square beta, so that means minus alpha beta gets common, beta plus alpha means alpha plus beta once again. So everything is known to me, divided by this into this. So when I am going for this into this, so 1 minus alpha square, fine, 1 minus beta square plus alpha square beta square plus alpha square beta square. Now this is known to me, 1 is already there, so I can just put down bracket over here, and I know a 9th standard identity, or I can say 7th standard identity, that alpha square plus beta square is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. That is something I know. So I will quickly calculate this value because the rest thing is known to me. So alpha plus beta whole square is 3/7 square, that is 9/49, minus 2 alpha beta is minus, and this minus plus 2/7. Fine, so 49 7, so make it 49. So it gives me 37/49. So it gives me 37/49. I can take alpha plus beta common from here, that will reduce my steps. So alpha plus beta, which I took common as 3/7, and then I left with 1 minus alpha beta. So into 1 minus alpha beta is minus 2/7. So minus of minus plus 2/7. Fine. Divided by 1 plus, here it is alpha beta whole square. So it is minus 2/7 whole square. Minus, I already got alpha square plus beta square as 37/49. Fine. So it's 7 plus 2, 9 is at 27 upon 49. Whole divided by, check out this, 4 plus 1, 5, no, wrong mistake. It is not 1, it is 49/49. So that we can have a common denominator. Fine. So that is a very simple mistake which a student used to do. So 49 plus 4 is minus 37, so it's 16. Yeah, it's 16. So 49 get cancelled, 27/16. I am getting 27/16. I am getting 27/16. Fine. So see, not a single step is beyond of 10th standard. Okay? So it's very simple question, and you can cross check. It's not in the year I have taken. You can cross check this came in this particular year. Fine. Thank you.
Okay, so next question is question number 14. Again 10th standard के लेवल का क्वेश्चन है. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन एंड देन बीटा इज इक्वल टू. ये उन्होंने पूछा है. ध्यान देने वाली बात है, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा पूछा है. चारों ऑप्शन अल्फा में, 6 ऑप्शन में, सेकंड शिफ्ट 2020 जेई मेंस. ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम इजीली बनाने की कोशिश करेंगे. सिंपल. तो देखो अल्फा और बीटा रूट्स है, तो सबसे पहले तो मैं x की जगह अल्फा लिख सकता हूँ. सो वो हो जाएगा 2 अल्फा टाइम्स 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, थोड़ा सा इसको टफ बना दिया उन्होंने. यहाँ पे बीटा और अल्फा का रिलेशन पूछा है, कोई कांस्टेंट नहीं है. जनरली हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज सम कांस्टेंट अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c/a. यहाँ वो नहीं है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन अप्रोच वही है. तो सबसे पहले तो ये निकाल दिया, उसके बाद सम इसको लिख लेते हैं 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा -2/4 मतलब -1/2. इससे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी -1/2 और ये माइनस अल्फा. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी मिलेगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. देखते हैं क्या कर सकते हैं. सो बीटा इज इक्वल टू -1/2 माइनस अल्फा. देखो हमको निकालना क्या है, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो बीटा तो मिल गया मुझे. अब सिर्फ यहाँ पर देखो ध्यान दो, अगर मैं इस -1/2 को रिप्लेस कर दूँ, कुछ अल्फा का रिलेशन से बात बन जाएगी. इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, हम कुछ और ही करने चले जाते हैं इसमें. फिर से देखो, बीटा की वैल्यू मिल गई है, बीटा ही निकालना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना है. यहाँ पर कहीं भी कोई कांस्टेंट नहीं है, सब में अल्फा है. तो मैं -1/2 को अल्फा के टर्म में लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ. 1/2 की वैल्यू है अल्फा टाइम्स 2 अल्फा प्लस 1. ये सब 1/2 की वैल्यू है अल्फा टाइम्स 2 अल्फा प्लस 1. बस रिप्लेस कर देते हैं. तो क्या कर रहा हूँ मैं, बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन ही ले लेता हूँ, तो 1/2 प्लस अल्फा होगा. लेकिन 1/2 की जगह लिख लेता हूँ अल्फा टाइम्स 2 अल्फा प्लस 1. तुम स्टेप क्रॉस करके भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे को समझाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन क्रॉस कर सकते हो स्टेप पे. ठीक है, माइनस कॉमन लिया, हाफ प्लस अल्फा, हाफ की जगह लिख दिया ये और प्लस अल्फा. नाउ क्विकली वर्कआउट करता हूँ. माइनस बाहर, अल्फा फिर से कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, तो ये अल्फा भी बाहर, अंदर बचेगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 1. तो ये हो गया माइनस अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2, 2 फिर से कॉमन, सो -2 अल्फा और अंदर अल्फा प्लस 1. -2 अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 1, -2 अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 1. ठीक है, था ये हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, छोटा ही क्वेश्चन था. ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल. ठीक है, सो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना था यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या पूछा, अल्फा और बीटा का रिलेशन, बस उस पर फोकस करना था. ठीक है, देन कम द 15th क्वेश्चन. इफ वन रियल रूट ऑफ द QE इज दिस. ओके, सो वन रियल रूट जो है वो क्यूब ऑफ द अदर रूट है. तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा क्यूब है ना. और सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, -k/81. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, 256/81 c/a. ठीक है, मैंने तो आज क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं. देन अ वैल्यू ऑफ k, उन्होंने k की वैल्यू पूछी है. वैसे k की वैल्यू 2 आएगी, मुझे ऐसा लगता है k की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस में. ठीक है, देखते हैं. सो देखो, मुझे इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले यहाँ से आ जाएगा. अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 256/81 को मैं लिख रहा हूँ 16/9 का होल स्क्वायर. ठीक है, और हमको ऊपर पढ़ लेते हैं, रियल रूट पूछा है. ठीक है, तो क्यों मैंने ऐसे लिखा, बिकॉज हमको मालूम है प्लस माइनस लगेगा उसको. लेकिन रियल रूट पूछा है तो हमको फिर से एक बार स्क्वायर रूट लेना है, तो नेगेटिव वाले को अवॉइड करेंगे, बिकॉज नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी हो जाएगा. समझ में आया. मैं इसको लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, एंड वी नो दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड विल कैंसल दिस, बट वी हैव टू अप्लाई प्लस माइनस साइन. But when I will take again under root, so alpha will be minus of 16/9 का under root which is complex. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फिर से अंडर रूट होगा तो अल्फा जो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा तो -16/9 का अंडर रूट आएगा, जो कि मुझे कॉम्प्लेक्स आंसर देगा. लेकिन क्वेश्चन में बोला है रियल रूट, तो हम नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देंगे. सिंपल, एक और बार स्क्वायर रूट निकालेंगे 4/3 हो गया अल्फा की वैल्यू. सो सिंपल, इट्स जस्ट 4/3. यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 4/3 वैल्यू. सो इट इज 4/3 प्लस 64/27 इज इक्वल टू -k/81. ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से करेंगे, ये हो गया 36 प्लस 64
100/27 माइनस के अपॉन 81, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, के की वैल्यू -300 आ चुकी है। के की वैल्यू -300 आ चुकी है। दो आंसर क्यों आते थे? बिकॉज अंडर रूट लेते थे तब प्लस माइनस ले सकते थे तब, तो 300 आएगा आंसर, चेंज कुछ होना नहीं है, 300 ऑप्शन में नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सो योर आंसर इज -300। आई होप अभी तक की जो भी आज 3 4 5 क्वेश्चन दिए अभी तक के, एक भी क्वेश्चन 10 के बियॉन्ड का नहीं है, बट वी आर डिस्कसिंग जेईई मेंस, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ जेईई मेंस, और ये सब देखो रिसेंट के है, ठीक है, 1920 के है। द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट द सम ऑफ द, हाँ ये कुछ ढंग का दिख रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ QE, दिस इज द QE हैज द लीस्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का है, लेकिन जो भी बच्चों ने 8 9 10 में थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव दी होगी तो उनको समझ में आ जाएगा लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एनीवे, तो पहले तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ गिवन नहीं है, अल्फा बीटा को रूट्स ले लेते हैं, तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, सो माइनस बी अपॉन ए, सो ए तो वन है, सो इट इज लैम्बडा -3, ठीक है। और ये लैम्बडा को इधर भेज देंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस लैम्बडा, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 2 माइनस लैम्बडा, ठीक है। दैट्स इट, ये हमको दो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और क्या है, लैम्बडा की वैल्यू निकालना है। हाँ, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ये होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ये होगा, और ये लीस्ट चाहिए, पहले निकाल तो लेते इसकी कहानी क्या है। तो इट गिव्स मी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, so अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज लैम्बडा -3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज 2 माइनस लैम्बडा, expanding it lambda square minus 6 lambda plus 9 minus 4 plus 2 lambda, fine, it's a 6 7 8 standard step, lambda square minus 4 lambda plus 9, that is something I am getting sum of the squares of the root, ठीक है। हमको क्या बोला है, ये लीस्ट चाहिए, लैम्बडा की कौन सी वैल्यू पे ये लीस्ट रहेगा, ठीक है, लैम्बडा की कौन सी वैल्यू पे ये लीस्ट रहेगा, ठीक है, 2 पे रहेगा यार, ठीक है, मतलब 2 पे रहेगा, दो 4 वे से बता सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं लगाऊंगा, 2 वे से बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली है। अब लैम्बडा की कौन सी वैल्यू पे ये लीस्ट रहेगा, इसके वैल्यू, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 5 कर देता हूँ, ये हो गया लैम्बडा -2 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो बस परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में लैम्बडा की कौन से वैल्यू पे इसकी वैल्यू लिस्ट रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो निगेटिव भी रहेगा, तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब वो वैल्यू 0 रहेगी। तो वो वैल्यू 0 कब रहेगी, जब लैम्बडा 2 रहेगा, सिंपल ओवर। तो लैम्बडा की वैल्यू 2 ऑप्शन में है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। मैंने पहले बोला काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा सिर्फ लिस्ट वैल्यू का था, तो 9 10 का थोड़ा सा अगर कोई कॉम्पिटिटिव NMTC वगैरह टाइप से कभी दी होगी तो ये एकदम बच्चा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये बेसिकली चैप्टर 11 का है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, ऑब्वियसली जेईई मेंस लिख रहे हो और 21 वगैरह की बात कर रहे हो, हम 4th अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, 22 वालों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेरिवेटिव आता होगा, डेरिवेटिव कैलकुलस का। देखो डेरिवेटिव तो फेवरेट है, करो डिफरेंशिएट, 2 लैम्बडा माइनस 4, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यूज लैम्बडा इज इक्वल टू 2 ओवर, ठीक है। मैंने बोला मुझे 4 वे आते हैं, लेकिन ठीक है यार, मैं और ये नहीं करना चाहता हूँ, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 ओवर, है ना। अब डीप में नहीं जाना है, डीप में जाना मतलब एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, उसमें वो क्या बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर निकल जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करो, वो निगेटिव आएगा तो मिनिमम रहेगा, सॉरी वो निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम रहेगा, करो इसको डिफरेंशिएट फिर से, तो 2 आएगा, 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमम, दैट्स इट, लैम्बडा इज इक्वल टू। होप दिस इज फाइन। एक चीज़ और बोलना था, अभी 3rd अटेम्प्ट जेईई 2021 का रिजल्ट आया है, 7 बच्चों को आउट ऑफ मिले हैं, 300 आउट ऑफ 300, मतलब बोल सकते हैं 100% आए, ठीक है। और उसमें से एक बच्चा तो ऐसा है कि उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अटेम्प्ट में 100% मिले हैं, ठीक है। और वो बच्चे की सोच ये है कि उसको IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से KVPY देकर रिसर्च में जाना है, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है मेंस एडवांस से, ठीक है, वो अलग स्टोरी है, वो नहीं डिस्कस करना है मुझे डिस्कस यहाँ पे करना है। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, लिटरली पेपर बहुत ईजी आ रहा है,
7 बच्चों को जेई में आउट ऑफ मार्क मिल रहा है, मतलब हलवा पेपर है। देखो कोई बहुत होशियार नहीं है बच्चे, द पॉइंट इज नॉट दैट कि वो बहुत होशियार है, उसकी 2 साल 4 साल 5 साल, अरे पेपर इजी आ रहा है, बिलीव में पेपर इजी आ रहा है। तो ये जो जेई का फोबिया 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 निकाल के फेंक दो। मैं एक भी क्वेश्चन, आज 6 क्वेश्चंस लिए हैं, मुझे कमेंट करना, पर्सनल कमेंट ज़्यादा करते हैं तो कमेंट करके बताना इसमें से एक भी क्वेश्चन 10th के बियॉन्ड का था क्या, यहाँ से समझ सकते हो। और ये सब रिसेंट ले रहा हूँ मैं, 19, 20, आने वाले समय में 21 के भी तीनों अटेम्प्ट जो है वो लेने वाला हूँ। अब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। आई डोंट वांट टू इंक्रीज द वीडियो साइज फर्दर, सो दिस इज समथिंग इन द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टेकन, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ द zeros, product of the zeros. While searching the questions of the same category, I have found these many questions for sum of the zeros, product of the zeros. In the next video I will take across some more varieties of question. Until then, goodbye.